जिग्नेश मेवाणी, अमित चावड़ा, लालजी देसाई, पालभाई आंबालिया, गुलाबसिंह चौहान, अनंत पटेल અને રાજ્ય બહારથી આવેલા કોંગ્રેસના નેતાઓની ધરપકડના ભણકારા। આજે દલિત આદિવાસી ઓબીસી સમાજની મહીસાગરની રેલીની પરમિશન નામંજૂર થઈ હતી। દલિત આદિવાસી સમાજમાં આક્રોશ વ્યક્ત થયો હતો। ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજ્ય જ્યાં બાબા સાહેબ આંબેડકરની પુણ્યતિથિ પર કાર્યક્રમની મંજૂરી નહીં મળી। મહીસાગર કલેક્ટર IAS નેહા કુમારીની ધરપકડની માંગ સાથે રેલી આયોજિત કરી હતી। જિગ્નેશ મેવાણીએ આને બાબા સાહેબ આંબેડકર અને સંવિધાનનું અપમાન ગણાવ્યું। કોંગ્રેસના તમિલનાડુના સાંસદ શશિકાંત સેથિલ, કોંગ્રેસ પાર્ટીના CWC સદસ્ય પૂર્વ IAS કે રાજુ, અનુસૂચિત જાતિ વિભાગના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજેશ લીલોથિયા, મધ્યપ્રદેશના આદિવાસી नेता અને MLA હીરાલાલ અવાલા અને અનંત પટેલ, નૌશાદ સોલંકી, જીતેન્દ્ર પીઠડિયા વગેરે લુણાવાડા જવા રવાના થયા હતા। આજે આંદોલન શરૂ થશે અને જ્યાં સુધી આ જાતિવાદી દલિત આદિવાસી ઓબીસી વિરોધી નેહા કુમારની સામે કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આંદોલન છોડવાનું નથી। જય ભીમ, જય જોહાર। કરો ચાલો જી। આજે અમારી સાથે પૂર્વ IAS अधिकारी અમારા સૌના માર્ગદર્શક કે રાજુ સાહેબ, પૂર્વ IAS अधिकारी ને તમિલનાડુના MP શશિકાંત સેન્થિલજી, રાજેશ લીલોથિયાજી, કોંગ્રેસ પક્ષના SC ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી નૌશાદભાઈ સોલંકી, મારા સાથી ધારાસભ્ય રહી ચૂકેલા ગ્યાસુભાઈ, અમારા વિરોધ પક્ષના નેતા સાથી અમિતભાઈ ચાવડા, લાલજીભાઈ દેસાઈ, સેવાદળના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હીરાલાલ અલાવા, મધ્યપ્રદેશના આદિવાસી યોદ્ધા અને મધ્યપ્રદેશ કોંગ્રેસના અમારા વિધાયક પણ છે। આ બધા જ લોકો સાથે મળીને એટલું કહેવા માંગીએ છીએ કે ઓબીસી આદિવાસી દલિત સમાજનું અપમાન કરનારા એક અધિકારીને બચાવવા માટે રાજ્યની સરકાર પોતે મેદાનમાં આવે અને પોતાની કાળી મજૂરીની પાઈ જોડીને જે ઓબીસી આદિવાસી દલિત સમાજ આજે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પુણ્યતિથિ એમના નિર્વાણ દિન નિમિત્તે માળા અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ કરવાના હતા, એક સ્વાભિમાન સંમેલન કરવાના હતા। રાજ્ય સરકારે એ કરવા નહીં દઈને ભારતના બંધારણનું અને ડૉક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકરનું અપમાન કર્યું છે। આ RSSનું ષડયંત્ર છે। દલિત આદિવાસી ઓબીસીના આંદોલનને કચડી નાખવાનું વિડીયો સમગ્ર ગુજરાત દેશમાં બધાએ જોયો છે। નેહા કુમારીની જાતિવાદી માનસિકતાથી મહીસાગર દાહોદના લોકો વાકેફ છે। તમારી બધાની માગણી છે કે એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ આપેલી ફરિયાદનું કોગ્નિઝન્સ લઈ તાબડતોબ એમની ધરપકડ કરવામાં આવે, એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, નહીતર અમારું આંદોલન રોકાવાનું નથી। આખા ગુજરાતમાં ફરી દલિત આદિવાસી ઓબીસીને જગાડી RSS અને ભાજપની સરકારના જાતિવાદી ચરિત્રને એક્સપોઝ કરીશું, પણ આંદોલન રોકાવાના નથી। આજે સરકારે બાબા સાહેબનો કાર્યક્રમ નહીં કરીને સંવિધાનનું અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું અને ભારતના એક ઓબીસી આદિવાસી દલિતોનું અપમાન કર્યું છે। આ અપમાન ચલાવવાના નથી। કોઈ પણ સંજોગોમાં નેહા कुमारी। पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर नमन करता हूँ और आज जो बाबा साहब की इस मूर्ति के आगे हमने आके शपथ ली है कि हम इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसकी रक्षा करेंगे और जो लड़ाई पूरे गुजरात के अंदर जो हमारे आदिवासी दलित ओबीसी माइनॉरिटी के लोग लड़ रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ की कलेक्टर नेहा कुमारी का है, जो एक हमारे दलित आदिवासी समाज के एक नौजवान को गंदी गाली बकती है, उसको अपमानित करती है, जिसकी रक्षा जिसकी सुरक्षा बाबा साहब के संविधान में है। और ये मानना है कि नेहा कुमारी जिस ग्रंथ को पढ़ती है, जिस विचारधारा को मानती है, वहाँ पर ये कहा गया है कि शूद्र को, गंवार को और जानवर को और यहाँ तक कि नारी को भी अपमानित करना, उसको जलील करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी के लिए समानता लिखी थी, सभी के लिए बराबरी लिखी थी और यहाँ तक कि खास तौर पे नेहा कुमारी को ये समझना है कि आज अगर वो IAS ऑफिसर है
तो स्वर्ण महिलाओं के लिए भी अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया था। आज उसकी वजह से महिलाओं को जो संविधान में बराबरी का हिस्सा मिला, उसकी वजह से आज वो अपनी जॉब के ऊपर है। वहाँ पर बैठकर उसको न्याय करना है, सामाजिक न्याय करना है। वहाँ पर बैठकर अगर वो आदिवासी को, दलित को और अपमानित करती है तो हम उसका सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे देश के अंदर उसका आंदोलन करेंगे और उसको इस चीज़ के लिए सरकार को हम मजबूर करेंगे कि उसके खिलाफ एक्शन ले, FIR करे और उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा के तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। ये आंदोलन जारी रहेगा और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का उत्साह, दलितों का, आदिवासियों का देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर आने वाले समय के अंदर ये जो 34 साल की ये जो तानाशाह सरकार है, जिसने इस देश के अंदर, इस गुजरात के अंदर तानाशाह तरीके से, एक हिटलर शाह के तरीके से जंगल राज चला रखा है, उसको हम गिरा के रहेंगे और यहाँ पर संविधान के हिसाब से गुजरात चलेगा, ये देश चलेगा, ऐसा हम मानते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? राजेश लिलोटिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी SC डिपार्टमेंट का चेयरमैन। इधर एक प्रोटेस्ट में है, ये जिला का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, शी इज एन एक्यूज अंडर प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट, शी शुड बी arrested, she should be prosecuted under the Prevention of Atrocities Act because she has clearly committed an offence by abusing the Dalits, by denigrating their dignity. So our demand is for her dismissal from the service and for putting a case against her, prosecuting her under Prevention of Atrocities Act. आपका नाम क्या है सर? My name is K. Raju, my CWC member. ओके। तिरुवल्लूर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, अभी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संघर्ष के लिए मैं अपना साथी जिग्नेश को के साथ आया हूँ कि यहाँ पे गुजरात सरकार ने दलित, आदिवासी और OBC माइनॉरिटी का कंटिन्यूअसली डिसरिस्पेक्ट और उनका जो स्वाभिमान है उसको हर्ट करते हुए सरकार चला रही है। हमारे ये बोलना है कि यहाँ पे सरकार नहीं चल रहा है, कुछ जंगल राज चल रहा है। अगर हमारा जो इस धरती का मूल निवासी है, उनके स्वाभिमान के ऊपर अगर उनका अधिकारी सरकारी मंच से ऐसे निंदन करेंगे जो SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट में ऑफेंस होता है और उसके बारे में एक अपॉलजी तक नहीं देंगे, तो कैसा सरकार चल रहा है? उसके मतलब है ये अधिकारी अपने मुंह से नहीं बोल रही है, पूरा सरकार का पूरा जो इंटेंशन है वो दिखा रही है। तो गुजरात की पूरी आदिवासी, SC/ST, OBC माइनॉरिटी का मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिर्फ सारे देश का बोलना चाहता हूँ कि ऐसे व्यवहार को कि हम अलोक करते जाए, यहाँ पे हमारा कुछ जगह नहीं रहेगा, यहाँ का हमारा कुछ हक नहीं रहेगा और हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा जो मर्यादा ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर हमें दिलाए उसको हम खो जाएंगे। इसलिए आप जागो और इसकी पूरा जो कानून की तरह उसके जो पनिशमेंट होना चाहिए, डिसमिसल होना चाहिए, उसका अरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले खुलेआम इस जनता के सामने उनको अपॉलजी करना ही चाहिए। तब तक हम इस आंदोलन को पूरे देश में चलाएंगे। सारे देश में जो हमारे साथी लोग हैं यहाँ पे आएंगे और आंदोलन देंगे। क्या नाम है सर आपका? शशिकांत सेंथिल, तमिलनाडु का MP हूँ और मैं पूर्व IAS ऑफिसर भी रह चुका हूँ और मैं 3 जिले का कलेक्टर भी रह चुका हूँ। एक कलेक्टर कैसा रहना है ये सबको पता है, मगर ऐसे सरकारी मंच से जातिवाद बात करना, इससे ज़्यादा गुजरात के लिए कोई अपमान नहीं हो सकता है।